یہ اقتدار رات کی سیاہی ہمارے اوپر مسلط ہے اور سورج نکلنے میں ابھی بہت دیر ہے۔ میں نے بہت سوچا ہے مراد بیٹے، لیکن مجھے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں نظر آتا کہ ہمیں کانگریس کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ شاید ہندو مسلمان مل کر فرنگیوں کو نکال سکیں۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے بجان؟ میں اندھیرے میں ہوں، لیکن روشنی کی کرن میری زندگی کا آخری سہارا ہے۔ میرے خیال میں دیر ہو رہی ہے، چلنا چاہیے۔ جی آؤ۔ سید صاحب، میں تہذیب الاخلاق کے مضامین پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ سائنس اور مذہب میں جو صلح کرانا چاہتے ہیں اس کی بنیاد کس اصول پر مشترک ہے؟ ظاہر ہے عقل پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عقل کن کی؟ مثلاً خود میری۔ لیکن سید صاحب، مذہب کی بنیاد تو ایمان بالغیب پر ہے اور سائنس کی بنیاد تجربے اور مشاہدے پر۔ ان دونوں کو ملانا کس طرح ممکن؟ میرے نزدیک مذہب اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں، اور ایک سچے مذہب میں کوئی بات خلاف عقل ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن خلاف عقل ہونا اور بات ہے اور ما فوق العقل ہونا اور بات۔ دیکھیے، مذہب کے بارے میں میرے تصورات ایک تاریخی ضرورت سے پیدا ہوئے ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی دنیا میں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے بہت سے لوگ بدظن ہو گئے، خاص طور پر نئی نسل میں مذہب کے بارے میں بہت سے شکوک پیدا ہو گئے۔ میں نے جو تصورات پیش کیے ہیں ان کا مقصد ان شکوک کو دور کرنا ہے۔ رہے آپ لوگوں کے عقائد تو آپ ان پر قائم رہ سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ کے مذہبی خیالات نے آپ کے کام کو بہت نقصان پہنچایا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اس کا فائدہ آئندہ ظاہر ہوگا۔ سید صاحب، ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تاریخ کا جو تصور رکھتے ہیں اور اس کے تقاضوں کو جس طرح حل کرنا چاہتے ہیں اس میں تہذیب کی نفی ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ قوم کو سویلائز بنانا چاہتے ہیں اور سویلائزیشن سے آپ کی مراد مغربی سویلائزیشن ہے، تو کیا آپ کے خیال میں ہمارا یورپ کے رنگ میں رنگ جانا مناسب ہے؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے؟ اس سوال کا جواب وقت دے گا۔ بہرحال مجھے ایک بات کا یقین ہے کہ اگر ہم اس نئے دور میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں سائنس، عقل اور تہذیب کے نئے تقاضوں کو قبول کرنا پڑے گا، اور اس کی تصویر میرے ذہن میں صرف یہ آتی ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں سائنس اور سر پر لا الہ الا اللہ کا تاج ہونا چاہیے۔ تم چلو بیٹے، میں آتا ہوں۔ جی بیٹے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ جی میرا نام مراد ہے۔ آپ کو ملا تھا جب گھر سے آیا ہوں ابا جان کے ساتھ، لاہور جا رہا ہوں۔ یہ جو تمہارے ساتھ آئے تھے یہ تمہارے ابا ہیں؟ جی ہاں۔ اور تمہاری امی؟ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا نام کیا تھا؟ ستوت جہاں۔ ستوت کا انتقال ہو گیا؟ جی۔ آپ انہیں جانتی ہیں؟
नवाब अमीरुद्दीन को दिल्ली में कौन नहीं जानता बेटा? वो तुम्हारे नाना थे ना? जी हाँ। मुझे बहुत अफसोस हुआ बेटा। अच्छा अब मैं चलती हूँ। सुनिए, आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? जी। ये तो मैं खुद भी नहीं जानती बेटा। बस यूँ समझ लो एक मकतब में बच्चों को पढ़ाती हूँ। लेकिन आपका नाम? क्या करोगे नाम पूछकर बेटा? जिन लोगों की किस्मत बिगड़ जाती है उनका नाम भी बाकी नहीं रहता। अच्छा बेटा, जीते रहो। आज तो मेहमानों की खातिर मदारात का बड़ा एहतमाम है। मैं तो सामान उठवा रही थी। भाई बड़े दिलचस्प मेहमान हैं आपके, मिली उनसे? जी? खुश हुई मिलकर? जी नहीं। हद करती हैं आप, किसी से मिलकर खुशी नहीं होती। भाई हमसे मिलकर खुश ना हुआ करें, हम बुरा नहीं मानते, मगर दूसरों का तो ख्याल कर लिया करें। कैसी कैसी उम्मीद लेके आते हैं बेचारे बमै कबूतरों के। जी मुझे कुछ ऐसा शौक नहीं लोगों से मिलने का। अफसोस, और लोग इस शौक में जान दे रहे हैं, संगे आसान से सर टकरा रहे हैं बेचारे। जी मुझे किसी की जान की जरूरत नहीं, और वो भी ऐसे फजूल लोग। क्या क्या किसी की जान की जरूरत नहीं है? जी। अरे बाबा, आपने पहले बताया होता, आप बता रही हैं आप। अब मैं क्या करूं? आप भी हद करते हैं। उन लोगों की बातें सुनी आपने? उन लोगों की क्या, मैं तो सारे वक्त खुद उनकी गुफ्तगू सुनता रहा हूँ। जालिम की क्या बात है कबूतरों के बारे में, आदमी से ज्यादा कबूतर लगता है। अच्छा खैर छोड़िए, कबाब खाइए, बहुत मजे के बने। मजे के? जी। तो फिर आप ऐसा करें, अपने मेहमानों को खिलाएं। मेहमान से एक वक्त में 4-4 कबाब खा रहे थे। पता नहीं क्यों आ गए ये लोग खामखा। ये पता नहीं क्या मतलब, वो तो बड़े अज़्म हौसले से आए हैं, बहुत खुश मजीद खुशियों की तवक्को में। सुना है आपके लिए तोहफे में कबूतरों की एक अदद जोड़ी भी लाए। नफरत है मुझे कबूतरों से। अल्लाह अकबर, वो बेचारे सुनने तो अभी पता है। मैं किसी से डरती हूँ, सुन ले तो सुन ले। इस वक्त तो बड़ी बहादुर हो रही हैं आप। सुना है आपने कुछ? क्या? वो आपको क्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्तान। और साथ ही ये भी कह रहे थे कि अलीगढ़ में जो पढ़ता है तो उसके दीनों ईमान का कोई भरोसा नहीं। आप उन गरीबों को क्या मालूम कि दीनों ईमान कहाँ कहाँ खतरे में पड़ता है। मसलन ये कि इस वक्त ईमान की रोशनी एक काफिर के सामने है। तो ईमान की रोशनी बाहर क्यों नहीं चली जाती? भाई बात तो यही है कि ये रोशनी कुफ्र के सामने ज्यादा रोशन होती है। मुराद, लीजिए, वो आ गए सर के बल। मैं तो चली। अरे वाह भाई वाह, मुझसे कौन लोग पर्दा करते हैं? अरे आपको नहीं पता यहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं। वो तो ये कहते हैं कि आप ही पर्दा कर जाएं बिल्कुल से। मैं? जी। मैं कैसे करूं पर्दा? वो शौक से करे। वैसे यार खूब पर्दा है कि चिरमन से लगे बैठे। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। खुदा का शुक्र। ये किस बात को खुदा का शुक्र अदा हो रहा है? किस कदर घटिया बातें करता है ये शख्स। नहीं तो हर कोई आदमी मेरी तरह आला किस्म की साफ सुथरी और नफीस बातें तो नहीं कर सकता। पता नहीं अम्मी अब्बू क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं इनको। दाल में कुछ काला मुझे भी लग रहा है। क्या बात है? क्या? मुझे क्या पता। सर ना बताएं आप, आपका चेहरा सब कुछ बता रहा है, मुझे पता चल गया। क्या क्या पता चल गया आपको? ये आप इतना शर्मा क्यों रही हैं? भाई हर लड़की को एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। वकार मियां, मैंने सुना है तुम निकट भी, फिर ख्याल क्या पूछते हो? आप मुराद से मिले तो हैं ना, फिर देखा तो होगा। हाँ, देखने को देखा है, मगर ना देखता तो अच्छा था। क्यों, ऐसी क्या बात देखी आपने? मियां देखा तो तुमने भी होगा, अंग्रेजी बोलता है। तो इसमें एतराज की क्या बात है? एतराज की बात ही नहीं है मियां, अंग्रेजी फिरंगियों की जबान है, और जो अंग्रेजी बोलता है आधा क्रिस्तान हो जाता है। ये किसने कह दिया आपसे? किसने कह दिया? उलमाए दीन फरमाते हैं। गलत बात है। किसी मुस्तनद आलिम दीन ने आज तक अंग्रेजी सीखने की मुखालफत नहीं की। हाजी इमदादुल्लाह, महाजिर मक्की और मौलाना कासिम नानोतवी तक अंग्रेजी सीखने के हक में है। क्या बात करते हो मियां, सैयद के तो कुफ्र के फतवे निकल चुके हैं। वो और बात है, कुफ्र के फतवे उनके मजहबी ख्यालात पर दिए गए हैं, अंग्रेजी सीखने पर नहीं। और मौलाना कासिम नानोतवी ने तो कुफ्र के फतवे से इख्तलाफ भी किया है और सैयद साहब को मुसलमान माना है। बस तो ठीक है, तुम भी ऐसी मुसलमान बन जाओ ना, खूब बिट बिट अंग्रेजी बोलो, गर्दन मरोड़ी मुर्गी खाओ और कुछ दिन के बाद पूरे क्रिस्तान बन जाना। खैर छोड़िए इस बहस को, वो आप कुछ कह रहे थे। अरे मियां जाने दो, मैं तो तुम्हारे पास अपने ही चक्कर में आया था।
भाई देखो ना, आखिर अजीज भी तुम्हारा भतीजा है और माशाल्लाह हजारों में एक है। मैं तो उसके लिए तुमसे निखत बेटी का रिश्ता मांगने आया था। अच्छा तो ये बात है। हाँ मियाँ, मैं तो इसी इरादे से आया था। अब देखो ना, हम तुम कोई गैर तो है नहीं, लड़की अपने घर में रहे ये ज्यादा अच्छा है या गैरों में जाए ये अच्छा है? और फिर ये इकबाल वगैरह कोई खानदानी लोग नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? उन लोगों का खानदान हमसे कम तो नहीं है। अरे बस रह दो, दो जबान न खुलवाओ, मुझे सब मालूम है। हाँ यूं कहो कि इकबाल से तुम्हारी दोस्ती है, जो ना कहो कम है। फिर एक बात और भी तो है। क्या बात है? अगर तुम मानोगे कब, मुराद की बातें मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। अजीज से कह रहा था कि मैं तो आला तालीम के लिए विलायत जाऊंगा। अजीज ने पूछा तुम्हारी शादी का क्या होगा? ऐसी जल्दी क्या है? और फिर ये कि हिंदुस्तानी लड़कियां बिल्कुल जाहिल होती हैं। मुराद ने कहा? कसम ले लो जो इससे कुछ कम कहा हो, इससे कुछ ज्यादा ही कहा था। और तुम देखना बेकार मियां, ये विलायत से कोई क्रिस्टान ब्याह कर लाएगा। अरे आप जी आदाब अर्ज करता हूं। आप यहाँ कैसे? क्यों, चला जाऊं? ये मैं कब कह रही हूँ? आपसे क्या बैद कह भी देंगी? नहीं तो। बाज लोग खामोशी में कैसे गुफ्तगू कर लेते हैं, बे आवाज बे अल्फाज किस्म की। सब कुछ कह भी दिया, कुछ कहा भी नहीं, तो हम जवाब क्या दें? आप कब जा रहे हैं वापस? क्यों, आप चाहती हैं मैं चला जाऊं? ये मैं कब कह रही हूँ? फिर आप क्या कह रही हैं? कुछ नहीं, मैंने तो नहीं, अगर आप रोकना चाहती हैं ना तो रोक लीजिए, मैं रुक जाऊंगा। कमाल है, आप अपनी तरफ से खुद ही बातें करते रहते हैं। गोया आप रोकना नहीं चाहती। या अल्लाह, अरे हसरत ही रह गई कि कभी कोई हमें भी रोक लेता। आप कब जा रहे हैं वापस? अरे हमारे चले जाने से किसी को क्या फर्क पड़ जाएगा? मेहमान तो आपके पहले ही आ गए, बड़े खास किस्म के। बड़े अजीब से लोग हैं। क्यों, कुछ कह रहे थे क्या? मजाल है किसी की? ना बाबा ना, किसी की क्या मजाल, क्या आपको कुछ कहे। वैसे इत्तलान अर्ज है कि उनके इरादे नेक मालूम नहीं हो रहे। हम नेक को बस हुजूर को समझाए देते हैं। आप कब वापस आएंगे? क्यों, जल्दी वापस आ जाऊं? बल्कि आप कहें तो मैं जाते ही नहीं। बल्कि ऐसा करता हूँ कि मैं अपना एक बाल तोड़ के आप दे देता हूँ, जब जरूरत पड़े धूप में दिखा दीजिएगा, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। ओ कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। चले मेरे आने से खुश ना हुई, जाने से तो खुश हो गई आप। बड़े अजीब हैं आप। मैंने सुना है तुमने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला कर लिया है। मैं तुम्हारे फैसले को गलत तो नहीं कहता, मगर इतना जरूर कहता हूं कि सोच लो। मैंने बहुत सोचा है वकार, लेकिन अब सोचने से ज्यादा मैं कुछ करना चाहता हूं। पिछले 25 साल से मैं अपने अंदर के खला को अपने सीने में छुपाए एक ऐसी जिंदगी बसर कर रहा हूं जो एक सुलगते हुए अंगारे की तरह खुद अपनी राख में अपना कफन बन रही है। मैं अब इससे बाहर निकलना चाहता हूं, एक नए मकसद के लिए, एक नई जिंदगी के लिए। तुम्हें उम्मीद है कि कांग्रेस में शामिल होकर तुम्हें वो जिंदगी वापस मिल जाएगी जिसे तुम गुम कर चुके हो? मैं उन इंसानों में हूं वकार जो जिंदा रहने के लिए एक ऐसा मकसद चाहते हैं जिसके लिए वो मर सके। मुझे वो मकसद मिल जाए, अंदर से उस पर मुझे यकीन आ जाए, तो समझो मुझे सब कुछ मिल गया है।